Arvind Agrawal from Banner Public School, Pilibhit. Dear students, chapter name is Continuity. Topic Continuity in an Interval. I will discuss you one more example that is important. If fx is equal to 1 whenever x less than equal to 3, ax plus b whenever 3 less than x less than 5, this is 7, 5 less than equal to x. Determine the values of a and b so that the function is continuous. जब यहाँ पर टू वैल्यूज a and b निकालनी है तो we have to form two linear equations. For that we will consider 2 points. Now see here, ये देखिए यहाँ पर एक लिखा है x, ये नंबर लाइन है, ये 3 पर भी डिवाइड हो रही है, 5 पर भी डिवाइड हो रही है. This is x less than equal to 3, 3 less than x less than 5, this is x more than equal to 5. तो आपको 3 भी कंसीडर करना है और 5 भी कंसीडर करना है. उसके लिए देखिए यहाँ पर इफ x लेस देन 3, fx इज इक्वल टू 1. Being a constant function, it is everywhere continuous. Therefore, fx is continuous at x less than 3. x more than 3, x more than 3 इस कैटेगरी को बिलोंग करता है. x more than 3, fx equal to ax plus b. Being a polynomial function, it is everywhere continuous. So, therefore, fx is continuous at x more than 3. Now, continuity at x is equal to 3. Therefore, left hand limit of fx at x equal to 3, that should be equal to right hand limit of fx at x equal to 3, that should be equal to f3. 3 पर function image. Limit x tends to 3 negative fx, limit x tends to 3 plus fx is equal to f3. x less than 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू 1 है, मोर देन 3 पर इसकी वैल्यू ax प्लस b है, इज इक्वल टू 3 पर अगेन इसकी वैल्यू 1 है. यहां पर आपने लिमिट यूज कर लिया, दैट इज 3a प्लस b, 3a प्लस b इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी विल कंसीडर अनदर पॉइंट. सिंस x लेस देन 5, f इक्वल टू ax प्लस b, लेस देन 5 पर फंक्शन ax प्लस b है. Being a polynomial function, it is everywhere continuous. Therefore, fx is continuous at x less than 5. If x more than 5, fx is equal to 7. More than 5 इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है. यहाँ पर fx की वैल्यू 7 है. Being a constant function, it is everywhere continuous. Therefore, fx is continuous at x more than 5. Now the continuity at x is equal to 5. Left hand limit of fx at x equal to 5 is equal to right hand limit of fx at x equal to 5 is equal to f5. Limit x tends to 5 negative fx is equal to limit x tends to 5 plus fx is equal to f5. Limit x tends to 5 और लेस देन 5 पर फंक्शन ax प्लस b है और मोर देन 5 पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट 7 है. Therefore, 5a plus b is equal to 7. This is equation number 2. Now solve equation number 1 and 2. We get a is equal to 3 and b is equal to minus 8. Now I am going to start you new chapter. Chapter number 10. Chapter number 10 is differentiability. First I will discuss to you what do you mean by differentiation. Let fx be a real valued function defined on an open interval a comma b and c belongs to a comma b. अगर ये c इसके ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है, देन fx इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c. तो c पॉइंट पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब कहलाता है इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट फाइनाइटली. एक्चुअली ये मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो फॉर्मूला लिखा गया है यहां पर ये एक टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है. तो यहां पर डिफरेंशिएशन का मीन्स होता है टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व. आपने क्लास 11th में स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टडी किया था. अब यहां पर सपोज कीजिए ये कोई कर्व है और इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू c पर अगर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी है तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप कैन बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c
it is also said to be differentiation of the function at the point x is equal to c. तो ये लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए. डिफरेंशियल इज डिनोटेड बाई एफ डैश सी. अब इसका सिंबल है एफ डैश सी, डी एफ सी और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी. इनको 3 सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दस एफ डैश सी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली. एग्जिस्ट फाइनाइटली मीन्स होता है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए. यहां पर मैंने वेरिएबल बदला है, h टेंड्स टू 0 तो x की वैल्यू c माइनस h में कन्वर्ट हो गई. यहां पर वेरिएबल चेंज किया है तो x वैल्यू c प्लस h में कन्वर्ट हो गई. नाउ जनरली अगर ये तो पर्टिकुलर पॉइंट c पर निकाला गया था, लेकिन अगर आप होल ऑफ द कर्व पर टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालेंगे दैट इज जनरली, तो इस c को हमने x से रिप्रेजेंट किया है. लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच. केवल यहां पर c की वैल्यू x यूज कीजिए. लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. तो जनरली आपके पास फॉर्मूला आ गया एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. इट इज नोन एज डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल. Now dear students, assignment, today's assignment exercise 9.2 question number 4th इसका 7th part, 8th part, question number 5, 7, 9, 10, 16, 12 and 14 इतने क्वेश्चन कर लीजिए. That is sufficient. That's all today.